Welcome guys, welcome to Video Home. So today we will discuss leave travel allowances or what we call LTA, and we will see the section 10(5) exemption. Leave travel allowances is an allowances which is provided by the employer as a part of your salary package. Okay, so if you are an employee and if your salary package includes leave travel allowances, then you get some exemption based on section 10(5). But yes, exemption क्या है? Let us see in detail. Now first and foremost important question, amount of exemption. कितना amount मेरे को मिलेगा as LTA exemption under section 10(5). So exemption will be lower of the following. नंबर वन, LTA प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब आपके CTC में आपका कितना लीव ट्रेवल अलाउंस का कंपोनेंट है और द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड बाय यू, आपने एक्चुअली कितना लीव ट्रैवल पे खर्चा किया है. सो इसमें से जो लोअर होगा वो आपको 10(5) सेक्शन 10(5) में एग्जेम्पशन मिल जाएगा. Now, three important points which we need to keep in mind. Number one, amount should be actually incurred. You have to actually do that journey. आपके CTC में mentioned है LTA, but अगर आप journey नहीं करते हैं, benefit will not be provided. Second, you can only travel within India. Only domestic travel is allowed. You can, if you are traveling outside India, you cannot claim this exemption. थर्ड पॉइंट इज कि इवन इफ LTA इज प्रोवाइडेड बाय योर एक्स एम्प्लॉयर, अगर आपका पुराना एम्प्लॉयर आपको अगर LTA प्रोवाइड करता है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट. नाउ हु कैन अवेल द बेनिफिट? हु हैज टू एक्चुअली डू द जर्नी? सो इट कैन बी डन बाय SSC खुद, SSC's spouse and children, but children only two children. Whether other members of the family can avail this benefit, the answer is it will depends upon whether those are wholly or mainly dependent on the SSC or not. So if your brother, sister and parents are wholly or mainly dependent on you, then they are also covered by this benefit. Now there are 2-3 important points in regard to children. Only 2 children will be covered under LTA exemption. But if your child is born before 1st October 1998, then there is no restriction on the number of children. But if they are born after 1st October 1998, then the restriction is of 2. There is an interesting provision over here that if you have one child and if your second or third child comes together, if they are twins or if they are triplicate, then those triplicate or twins will be considered as one. Yes, this is an interesting provision already covered. Now, stepchild or adopted child is also covered here. Moving next. Is exemption available every year? We all know that leave travel allowances is a part of our salary package and we receive every year. तो क्या हम benefit भी हर साल ले सकते हैं? The answer is no. You can claim benefit for 2 out of 4 calendar years. 4 सालों में किसी 2 साल में आप benefit ले सकते हैं. ब्लॉक इज मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट. ब्लॉक ऑलरेडी गवर्नमेंट मेंशन करता है. 1986 से ब्लॉक चालू हुआ था एंड नाउ यू कैन सी द ब्लॉक 2002 से 2005. दीज आर कैलेंडर ईयर्स. सो किसी एक ब्लॉक में 2 बार आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं. What if you are not able to claim the benefit in any one block? किसी वन ब्लॉक में आपने LTA लिया ही नहीं या फिर एक ही LTA का बेनिफिट, एक साल में आप गए घूमने और उस 4 सालों में वापस नहीं गए. You can carry over your LTA benefit. You can carry over your concession, but the restriction is कि अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आपको बेनिफिट अवेल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल 2002 और 5 में आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया था तो वो कैरी ओवर हो जाएगा इस ब्लॉक में. बट आपको 2006 में वो लीव ट्रैवल का बेनिफिट अवेल करना होगा फर्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक. मूविंग नेक्स्ट. नाउ देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन रिगार्ड टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आपकी जर्नी 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप एयर ट्रैवल के थ्रू कर सकते हो या अदर देन एयर ट्रैवल्स, या तो फ्लाइट से या नॉन फ्लाइट से. अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो जो इकोनॉमी फेयर ऑफ नेशनल कैरियर, मतलब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का जो इकोनॉमी फेयर है उस जगह जाने के लिए वो कंसीडर किया जाएगा. उस अमाउंट तक का बेनिफिट आपको मिलेगा. जब आप डिस्टेंस देखोगे तो शॉर्टेस्ट रूट देखना होगा. अगर आप दिल्ली से कोलकाता के लिए जर्नी करना चाहते हो तो दिल्ली से कोलकाता का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो यहाँ पे कवर्ड होगा. अगर आप दिल्ली, मुंबई एंड देन कोलकाता जाते हो
तो वो कवर्ड नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका जो फेयर है वो कंसीडर किया जाएगा, इकोनॉमी फेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर देन एयर, या तो आप ट्रेन से या बस से अगर जाते हो तो उसमें टू कैटेगरीज में डिवाइड है। योर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां से आप जाना चाहते हो या जहां पे आप जाना चाहते हो, अगर वहां पे रेल नेटवर्क है या फिर रेल नेटवर्क नहीं है। सो अगर रेल से कनेक्टेड है आपकी आपकी जर्नी, रेल से कनेक्टेड है, तो उस एसी फर्स्ट क्लास, उस ट्रेन का जो एसी फर्स्ट क्लास का फेयर है वो कंसीडर किया जाएगा। अगेन शॉर्टेस्ट रूट, घुमा के नहीं, शॉर्टेस्ट रूट देखा जाएगा। और अगर रेल नेटवर्क नहीं है, अगर रेल नेटवर्क नहीं है बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड है, कोई रिकॉग्नाइज बस या कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो उस रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास का जो फेयर है उतने तक का बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वी विल अज्यूम कि आप ट्रेन से जा रहे हो, वी विल अज्यूम दैट यू आर गोइंग बाई ट्रेन एंड द डिस्टेंस एंड द एसी फर्स्ट क्लास फेयर फॉर द डिस्टेंस, उस जर्नी का, उस डिस्टेंस का जो एसी फर्स्ट क्लास का फेयर है वो हम कंसिडर करेंगे। So I hope this limits benefit is clear to you. I try to summarize this in a short summary. If you have any doubt, you can connect me on this details. Thank you.